8 گھنٹے آپ کام کریں، 8 گھنٹے اپنی سوشل لائف گزاریں. ہمیں کسی دور میں بھی یونٹی کی ضرورت اتنی نہیں رہی جتنی آج کے دور میں ہے. آج کے دور کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سب سے ہوتا ہے جیسے لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں، اور یہ ورس سے ورس ہوتے جائیں گے آنے والے وقت میں. جیسے ہر 15 دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت نیپرا جو ہے وہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیتی ہے، اور 11 بجے 12 بجے اس وقت ہم کاروبار کا آغاز کرتے ہیں. پھر آپ اس وجہ سے دیکھیں کہ آپ 11 بجے جب اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں اور رات کو 10 بجے تک بیٹھتے ہیں، تو 10 بجے کے بعد آپ رات کو 11 بجے گھر واپس جائیں گے، کھانا کھائیں گے، سارے معاملات دیکھیں گے، اور دوبارہ جب سونے کی طرف جائیں گے تو 2 بج چکے ہوں گے، یا 1 یا 2 بج چکے. تو آپ کی جسمانی باڈی اس طرح تخلیق نہیں دی گئی. اس کا 9 بجے کھلتی ہیں اور 5 بجے فکس بند ہو جاتی ہیں. تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری مارکیٹ بھی اسی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ شالم مارکیٹ میں موجود ہوں. یہ مارکیٹ جہاں کاروبار کے لحاظ سے کافی جانی پہچانی جاتی ہے، وہیں بے شمار سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس مارکیٹ سے وابستہ ہے. اس مارکیٹ کا حسن اور اس مارکیٹ کی شان جنگ محل بھی کہلاتا ہے، جس میں بے شمار ریڈی میڈ گارمنٹ سے منسلک تاجر اور کاروبار والے حضرات وابستہ ہیں. اس مارکیٹ کے حسن میں ہر دور میں ہی بہت اضافہ ہوا ہے، جس کا ایک پاکستان کی تاریخ میں بھی نام ہے، لاہور کی تاریخ میں بھی نام ہے، اور آج تک اس کا نام سب کے دل میں اور دماغ میں موجود ہے. اس مارکیٹ کی ٹائمنگ کے حوالے سے ایک معاملات زیر بحث آتے تھے. اس مارکیٹ کی ٹائمنگ کے لیے، اس مارکیٹ کی ٹائمنگ کو خوبصورت بنانے اور سب کو یکجا کرنے کے لیے ایک تاجر نکلے، جو کہ نوجوان تاجر ہیں، اور انہوں نے ایک کیمپین کا آغاز کیا، عوام کو یہ شعور دیا اور تاجران کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آپ صبح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نکلیں اور صبح کے اوقات میں کاروبار کا آغاز کریں اور شام ہوتے ہی اپنے گھروں کو جائیں. اس کیمپین نے نہ صرف تاجران کے دلوں میں گھر کیا، بلکہ اب یہ رنگ محل سے کیمپین ہوتی ہوئی پورے لاہور بلکہ اس سے باہر کی مارکیٹوں میں یہ کیمپین چلی گئی. اور یقیناً تاجران اس بات پر متفق ہوئے کہ انٹرنیشنل طرز پر آپ کوئی مارکیٹیں دیکھیں وہ صبح کھلتی ہیں اور شام کے اوقات میں وہ ہول سیل مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تو ہم پر لاگو ہیں اور ہم پر لازم ہے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا. میرے ساتھ اس وقت سینئر تاجر رہنما شیخ وقاص معین موجود ہیں، جنہوں نے یہ ساری کیمپین چلائی، رنگ محل سے اس جد و جہد کا سلسلہ شروع کیا جو کہ پوری مارکیٹوں تک پھیل چکا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. بہت شیخ صاحب، ایک کیمپین چلائی اور ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے یہ پھلتی پھولتی گئی، اب تو ہر تاجر کی یہ آواز بن چکی ہے. کس طرح خیال اس کیمپین کا آیا؟ کیا خیال آیا؟ کس طرح یہ کیمپین تیزی سے پھیلی؟ اور کیوں آپ کو عموماً یہ خیال آیا کہ صبح جلدی آنا چاہیے، رات کو جلدی گھر جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہماری آواز بنتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے، جو ہماری مارکیٹ کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی آپ ہماری آواز بنیں گے. بیسیکلی میرا کام کیونکہ امپورٹ سے زیادہ ہے، اس لیے اپنے کام کے سلسلے میں ہی میرے بیرون ملک بھی ٹور ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا، یورپ لے لیں، فار ایسٹ ایشیا لے لیں، صبح 6 بجے وہاں کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے. سڑکوں سے مراد کہ وہ اپنے پیسہ کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے صبح 6 بجے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اور اپنے جو بھی ان کے کام ہیں، چاہے وہ شاپ کیپرز ہیں، چاہے وہ جاب کرتے ہیں، وہ ٹائمنگلی اپنے شاپ سے پہنچ جاتے ہیں. اور شام ہوتے ہی 5-6 بجے ان کا ہر طرح کا جو معاشی نظام ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. یہ بیسیکلی احکامات، شریعت کے احکامات ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنائیں. لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اب مجھے جنات کا تو نہیں پتہ، لیکن ہم انسان جو ہیں کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں؟ بے شک کہ حلال رزق کمانا عین عبادت ہے، لیکن میں سائنسی فکر سے بھی اس بات پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اب اگر سائنس اور فزکس کو دیکھیں تو 24 گھنٹے کا دن ہے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگیاں 8 گھنٹے پہ اپنی ڈیوائڈ کریں.
8 घंटे से मुराद ये है कि 8 घंटे आप काम करें, 8 घंटे अपनी सोशल लाइफ गुजारें, 8 घंटे अपनी जो आपकी नींद है उसको आप पूरा करें। और अल्लाह ताला फरमाता है मैंने दिन की रोशनी काम के लिए बनाई और मैंने रात तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाई। और आराम का मकसद है, जब लैल का लफ्ज़ आता है तो लैल जो है वो मगरिब तक का टाइम होता है कि आप मगरिब तक के टाइम तक काम करें और उसके बाद जाके आप दूसरे अपने मामलात जो हैं वो देखें। डेफिनेटली। तो इस कैंपेन को यकीनन आपने फैलाया और यकीनन इंटरनेशनल मार्केटों में जिस तरह के सारे औकातकार हैं, एक बात आप उस पर हमेशा रोशनी उठाते हैं, आप हमेशा तज़किरा करते हैं किस वक्त ज़रूरत हमें है और अशद ज़रूरत है यूनिटी की, इत्तेहाद की, यगानगत की। और हमने देखा कि जब यूनिटी आई, जिस दौर में भी आई, जिस सतह पे आई, बिज़नेस कम्युनिटी जब यकजा हुई, बड़े से बड़ा फ़ैसला हुकूमत को वापस लेना पड़ा और ताजरों की बात माननी पड़ी। ये जो यूनिटी के हवाले से आप बात करते हैं एक होने की, उस पर क्या कहना चाहेंगे और कितनी ज़रूरत है आजकल के वक्त में, और टुडे नाउ द सिचुएशन, इसकी कितनी यूनिटी की ज़रूरत है? जी, हमें किसी दौर में भी यूनिटी की ज़रूरत इतनी नहीं रही जितनी आज के दौर में है। आज के दौर के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़े हमारे पास जो मसला आता है वो पावर का मसला आता है, पावर जनरेशन का मसला आता है। जैसे लोड शेडिंग के मामला आते हैं और ये वर्स से वर्स होते जाएंगे आने वाले वक्त में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये लोड शेडिंग के मामला जो हैं वर्स से वर्स होते जाएंगे। लेकिन लोड शेडिंग के साथ साथ आप हर 15 दिन के बाद आप देखते हैं कि हुकूमत नेपरा जो है वो बिजली के रेट बढ़ा देती है और पीक आवर्स के रेट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो शाम का टाइम है, जब आप कंसीडर करें 6 से लेकर 9 बजे तक, जहाँ इतना काम भी नहीं होता मार्केटों में, मैं सिर्फ गारमेंट्स मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं रिटेल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ होलसेल की बात कर रहा हूँ, जहाँ इतना काम भी नहीं होता और हम बैठ के एसी के साथ या मुख्तलिफ मुकम्मल लाइट्स के साथ जब बैठते हैं तो हमारे जो बिल हैं वो भी ज़्यादा आते हैं। ये अगर हम 6 बजे इसको ऑफ़ करते हैं तो हम एक तो ये सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे मामलात आते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में सिर्फ आप ये देखें कि आप अपने वालिदैन को घर जाके कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी हैं। आपके बच्चे भी आपकी ज़िम्मेदारी हैं। आप उनसे पता करें कि बेटा आप स्कूल गए हो, आप क्या पढ़ के आए हो, क्या वो निज़ाम वो चीज़ पढ़ के आए हैं जो कि हमने पढ़ी, जो इस्लामियात हमने पढ़ी या जो दीन के मुतालिक चीज़ें हमने पढ़ी। वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को भी राह रास्त पे लेके आएँ। सिर्फ 6 से लेकर 9 बजे तक दुकान को टाइम देना और ये कहते चले ना आज काम नहीं है, आज काम नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। मसले का जो हल है वो बेसिकली ये है कि हम अपनी ज़िंदगी उस तरह उन रूल्स पे मुताबिक गुजारें जो अल्लाह पाक ने हमें सिखाई है। देखें, अल्लाह पाक ने कोई चीज़ भी जो है बेकार पैदा नहीं की। क्या वजह है कि सुबह सुबह आपके कानों में अलल सुबह परिंदों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो उस वक्त तस्बीह कर रही होती हैं और वो बताती हैं कि उठो ये टाइम है तस्बीह करने का। उसके बाद निकलो, अपने मुआश के लिए निकलो, अपने बच्चों के रिस्क की तलाश के लिए निकलो। लेकिन हम उसको सोए हुए होते हैं। हम जब जो ज़वाल का टाइम है 11 बजे 12 बजे, उस वक्त हम कारोबार का आगाज़ करते हैं। फिर हमारी आप उस वजह से देखें कि आप 11 बजे जब अपने कारोबार का आगाज़ करते हैं और रात को 10 बजे तक बैठते हैं, तो 10 बजे के बाद आप रात को 11 बजे घर वापस जाएंगे, खाना खाएंगे, सारे मामला देखेंगे और दोबारा जब सोने की तरफ जाएंगे तो 2 बज चुके होंगे या 1 या 2 बज चुके। तो आपकी जिस्मानी बॉडी इस तरह तख्लीक नहीं दी गई, इस काम के लिए तख्लीक नहीं दी गई। आपकी बॉडी जो है वो अल्लाह के अहकामात को पूरा करने के लिए तख्लीक दी गई है। कैसे आप 2 बजे सो के सुबह फजर के लिए उठ सकते हैं, या रात के आखिरी पहर में जो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इबादत करो, कैसे कर सकते हैं? इसलिए मेरा मामला दीनी भी है, फ़िक्री भी है, मेरा मामला मुआशी भी है और मेरा मामला साइंस पे भी बेस्ड है कि अगर आप, ये एक पहली कड़ी है बेसिकली, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक पहली सीढ़ी है कि अगर एक हमारी टाइमिंग, देखें आज तक किसी हुकूमत ने आपको कौम बना सिखाया ही नहीं। आपको बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक समझे रेवर समझा है, जानवर समझा है, ठीक है चलते रहें करते रहें, लेकिन आपको कभी कौम बनना सिखाया ही नहीं। आप मुकम्मल आप टाइमिंग की तरफ तवज्जो दें, अपनी टाइम को यूटिलाइज़ करें, मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। मेरा मकसद ये है कि हम डे लाइट को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और जो रात का टाइम है उसमें जो अपने बाकी मामलात हैं वो देखें। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, थैंक यू। जी नाज़रीन, शेख वकास मुनीर की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इस वक्त ताजरान मज़ीद मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं कि ये जो टाइमिंग का इशू है वो किस तरह उनको देखते हैं। सर ये बताइएगा कितना ज़रूरी समझते हैं मार्केट में टाइमिंग का एक फ़िक्स टाइम मुनक्कद होना, कितने बजे सारे ताजर आएँ और इतने बजे अपने घरों को जाएँ?
देखिए जी, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है, उसके मुताबिक ही हर सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे स्कूल्स का टाइम है, सरकारी ऑफिस का टाइम है, इसी तरह हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पे, लेकिन कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग सुबह आते हैं और शाम में बंद करके चले जाते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे, जबकि हम आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सुबह मार्केट्स जो है 9 बजे खुलती हैं और 5 बजे फ़िक्स बंद हो जाती हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारी मार्केट भी इसी जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चले तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा है। भाईजान मैं तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ घूमा हुआ हूँ, दुनिया घूमा हुआ हूँ एक किस्म की। तो पूरी दुनिया में टाइमिंग यही है, सुबह 6-7 बजे वो ओपन होता है और तकरीबन शाम 5-6 बजे क्लोज़ हो जाता है सारा ही। तो हमारी भी पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। जन हमारा इशू ये है कि सुबह मार्केट जल्दी खुलनी चाहिए और शाम को जल्दी बंद होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल चाइना में सुबह हम जाते हैं तो सुबह जल्दी मार्केट खुलती है और शाम को जल्दी 5 बजे 6 बजे करीब बंद हो जाती है। तो हमारा इशू ये है, सुबह जल्दी खुले, शाम को जल्दी बंद हो जाए। हम लोग जल्दी बंद करेंगे तो लाइट की भी बचत है। जो लाइट की टाइमिंग है 6 से 10 बजे तक या 9 बजे तक, वो यूनिट का रेट भी डबल हो जाता है। अच्छा है कि अगर सुबह जल्दी खुल के शाम को जल्दी बंद हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। हम लोग अपने घर भी चले जाएंगे इजीली, बच्चों को भी टाइम दे लेंगे, और सबसे हमारी जो टाइम की बचत है बिल की वो होगी। कस्टमर ने आना ही है, अगर उसको पता होगा इतने बजे मार्केट बंद हो जानी है तो उसने अपने टाइम पे माल लेने जिसकी ज़रूरत है उसने आना है। तो बेहतर है कि ऐसा ही हो। जब मार्केट टाइमिंग के हवाले से ना एक टाइम होना चाहिए जो भी हो। जैसे ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे का टाइम बिल्कुल बेस्ट है। बेसिकली यहाँ पे टाइमिंग के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो रिज़ॉल्व नहीं हो सक रहे काफ़ी टाइम से। तो अगर तमाम दुकानदार यहाँ पर अपनी मुतफ़िका राय के साथ अगर इस चीज़ पर एग्री हो जाते हैं कि एक टाइम के पाबंद हम होकर चलें तो उसमें हम सब का फ़ायदा है। जी, टाइमिंग असूल के मुताबिक होनी चाहिए। जो कुदरत का कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। जो सुबह का एक टाइम फ़िक्स है उसके ऊपर सबको आना चाहिए और एक फ़िक्स टाइम जाने का भी होना चाहिए, और इसी में वक्त की भी बचत है और बकाया फ़ायदे भी इसमें पोशीदा हैं जी। इंशाल्लाह इससे सबको फ़ायदा होगा जी। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप ज़रा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत